Hello students, today we are going to start our new topic of p block element, which is nothing but group 17 halogen family. Okay, this belongs to group 17 halogen family and these comes under p block elements. Okay, p block elements. Why p block element? Because valence shell electrons are filled in p subshell, therefore p block element. And this is called as halogen family. Okay, group 617 elements are called as halogen family. Okay, this is a very important family because its periodic properties are very special. Okay, what are the periodic properties, its electronic configuration and all we are going to discuss today. So its valence shell configuration is ns2 np5. That means 7 electrons are there in its valence shell. Okay, these 7 electrons means it requires only 1 electron to complete its octet, right? So therefore this makes this element special because it requires only 1 electron to complete the octet. So they are very reactive. Okay, अगर हमको स्टेबल होना है तो हमको अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लगता है उस स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो फिर इट बिकम्स मोर रिएक्टिव. मीन्स जो भी कंडीशंस मिलेंगी फेवरेबल, इट गेट रिएक्ट्स. ओके, इट बिकम्स रिएक्टिव. सो वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड विच आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली. फर्स्ट मेंबर इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. ओके, फ्लोरीन फॉर F, chlorine for Cl, bromine Br, iodine I and astatine At. Okay, important members are fluorine, chlorine, bromine and iodine. Astatine is a radioactive. What is the atomic number? Fluorine have atomic number 9, chlorine 17, bromine 35, iodine 53 and astatine 85. See here how मतलब एक छोटा ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए कि फ्लोरीन 9 है और क्लोरीन 17 है. ओके, ब्रोमीन 35 है और आयोडीन 53 उसका ऑपोजिट है. 35 का अपोजिट मीन्स इंटरचेंज नंबर है 35 53 एंड देन कम्स 85 एस्टेटाइन. ओके, तो आई होप याद हो जाएगा इजीली और कुछ बच्चों को याद भी होगा. जिन बच्चों को याद नहीं है प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि इसके एटॉमिक नंबर विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यू नीड टू लर्न. इसके बाद में इसका नियरेस्ट नोबल गैस, फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? सॉरी, नियॉन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 ही है. नियॉन इसका नेक्स्ट नोबल गैस है जिसमें कंप्लीटली फिल्ड शेल रहेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ओके, दिस इज अ मिस्टेक. यहाँ पर क्या रहेगा? 1s2, राइट? 1s2, 1s2, 2s2 and 2p5, total making of 9 electrons, and valence shell configuration is 2s2, 2p5, right? 2s2, 2p5 is the valence shell configuration because it belongs to second period and number of electron is valence shell is 7. Next come chlorine. Chlorine C17, nearest noble gas is neon which occupies 10 electrons and the valence shell configuration becomes 3s2, 3p5. And then comes argon. Its nearest noble gas is next come bromine and its nearest noble gas is argon which occupies 18 electrons and it belongs to it gets completed 3d orbital. Okay, 3d orbital is completely filled means 3d 10 means 18 plus 10 28 electrons occupied, remaining 10 are occupied in the 4s2 and 4p subshell means it belongs to fourth period. Right, this valence shell configuration number also denotes its periodic where it is present in the period. Iodine with atomic number 53, nearest noble gas is 36 and after 4p5 here iodine will occupy 4d10. Its d subshell is completely filled and then comes 5s2, 5p5. Lastly, astatine, nearest noble gas is astatine with atomic number 85 and xenon it's having atomic number 54. Then comes after 4d, then comes 4f 14, then 5d 10, then 6s2 and 6p5.
Okay, so like this, valence shell electrons are filled. These are all filled according to above principle. You need to know the configuration. How means this filling occurs? All of you might have studied this thing in 11th standard. Okay, so once again I repeat. For fluorine, valence shell configuration is 2s2 2p5. For chlorine, it is 3s2 3p5. For bromine, it is 4s2 4p5. For iodine, it is 5s2 5p5. And for acetine, it is 6s2 6p5. In this way, all the electrons occupy the 6th period. Till 6th period, all the electrons get filled. Okay, everybody clear about the electronic configuration? Now comes occurrence. See, as halogens are very reactive, and the starting only I had told you that these are halogens are very reactive. Why? Because they require only one electron to complete their octet. So whatever favorable condition they come across, they become reactive, means they obtain octet, stable state. See, they do not occur in free state due to high electronegativity. Okay, hence they occur in compounds. Okay, in the compound form they occur in nature because they have highest electronegativity in the periodic table. Now, where does fluorine occur and what is its abundance? We will discuss these points. Fluorine, it occurs in the form of insoluble fluorides. Okay, fluorine, it occurs in the form of insoluble fluorides, and it is the 13th most abundant element. Okay, 13th most abundant element in the among the elements. Now, which are the ores? Fluorospar is the first ore, and its formula is CaF2. Okay, fluorospar. Next one is cryolite. Its formula is Na3Al F6. Okay, cryolite, Na3Al F6. When you had studied S block element, their compounds of sodium we had studied. There also cryolite name was, we came across this cryolite name because sodium occurrence comes in cryolite. Okay, we can extract either sodium or fluorine from this. So cryolite, Na3Al F6. Formula you need to learn, and name also. Anything can be asked in multiple choice questions. Next is fluoroapatite. Its formula is thrice Ca3PO4 twice CaF2. Okay, thrice Ca3PO4 twice CaF2. Fluoroapatite, right? Next is, where does these things occur? Means compounds of fluorine can be found in soil. Okay, मिट्टी में, fresh water, in plants, in bones and teeth of animals. Okay, fluorine is obtained in bones, teeth, plants, fresh water, and also in soil also. Okay, in combined form or in compound form it occurs. Also in sea water, chloride, bromide, iodide of sodium, potassium, magnesium and calcium occurs. Okay, Cl minus means chloride, bromide, iodide of Na, K, Mg and Ca also occurs, and mainly it occurs in the form of NaCl, right? Chlorine in the form of NaCl, NaBr, NaI, okay, MgCl, MgBr, okay, CaF2, like this. In sea water, different compounds of chloride, bromide and iodide occurs. Again, carnallite. What is the name? Carnallite. Formula is KCl MgCl2 6H2O. This is an ore of chlorine. Okay, it is an ore of chlorine, where chlorine is found out in the form of compound carnallite. Its formula is KCl MgCl2 6H2O. Also, marine life contains. Marine life means in oceans. Okay, there also iodine is present in their systems. Okay, in the systems means in water, iodine is present. Again in seaweed means जो घास आती है सी में. ओके, वीड मीन्स घास बोलते हैं हिंदी में.
seaweed, there also 0.5% of iodine is found out. And sodium in the form of sodium iodate, 0.2% of iodine is formed, and its name is Chile saltpetre. Okay, Chile saltpetre, 0.2% of sodium iodate, means iodine in the form of sodium iodate is formed there. In seaweeds, 0.5% is found out. In marine life, means in oceans, sea, rivers, there also you can find iodine compounds, or molecular iodine is also there. And carnallite, where in the form of KCl, MgCl2 and 6H2O, this is the formula of carnallite. Next is astatine. Astatine is radioactive and it has a half life of 8.1 hours. Okay, it has a half life of 8.1 hours. सबको पता है हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा, सुना होगा वर्ड. इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 8.1 आवर्स. ओके, याद रखना है. जो ओर्स के नाम है वो भी याद करने हैं, कितने परसेंट में कहाँ ऑकर होता है. मेनली ये सारे जो है हेलोजेंस, इट ऑकर्स इन सीज, सी वाटर में मिलते ही मिलते हैं सारे की सारे. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई. व्हाट हैपन्स डाउन द ग्रुप. सबको पता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स. राइट, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्वांटम शेल्स मीन्स, देयरफॉर down the group size goes on increasing. Next is across the period, means from left to right. What happens? The size, atomic radii and ionic radii, it goes on decreasing. What is the reason? Because Z effective. Right, Z effective क्या है? जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो न्यूक्लियर पुल है वो कैसा है, ग्रेटर है. राइट, ग्रेटर है. दैट इज नथिंग बट योर Z इफेक्टिव. दिस Z इफेक्टिव विल बी, इफ इट इज मोर देन क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा एटम. तो क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा. तो देयरफॉर बोल रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सारी चीजों का, सारे जितने भी एलिमेंट्स है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम यही बोलते हैं कि साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. वाई? बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस. न्यूक्लियर पुल जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होता है. ओके, देयरफॉर क्योंकि शेल नंबर इज कांस्टेंट, राइट, अक्रॉस द पीरियड शेल नंबर इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर न्यूक्लियर पुल ज्यादा रहेगा. तो देयरफॉर साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से. राइट, इसके बाद में नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. राइट, डाउन द ग्रुप क्या होगा फिर, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. देयरफॉर डाउन द ग्रुप इट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज साइज बड़ा होने की वजह से लेस एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो देयरफॉर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंड व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल. ठीक है, शेल सेम है तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. तो देयरफॉर वी से अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरीवन नोज, मीन्स हर क्लास में आई थिंक मैंने बोला है कि फ्लोरीन इज द हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ 4. उसके बाद में इनके पीरियड में फ्लोरीन के बाद में तो ऑक्सीजन है 3.5, पर कंपेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, ब्रोमीन का 3.0, आयोडीन का 2.7 और एस्टेटाइन का 2.2. सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. ओके, सबसे ज्यादा टेंडेंसी है फ्लोरीन का, इसीलिए वो जल्दी से रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. ओके, फिर बाद में है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टेटाइन. 4,
3.2, 3.0, 2.7 एंड 2.2. डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट. इसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन, राइट. इसके ऊपर डिस्कशन बहुत सारा किया है हमने. यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ईजी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, मतलब ईजी गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, राइट. लेस नेगेटिव बनते जा रहा है डाउन द ग्रुप. ओके, तो देयरफॉर वी कंक्लूड कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ईजीई जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, उसकी नेगेटिव वैल्यू पे. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेंगी उतना ज्यादा ईजी ही रहेगा. मतलब कि अगर हम कंपेयर करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ईजी किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. यहाँ पर एक्सेप्शन डिस्कस करने वाले हैं. देयर इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द साइज, बट द ट्रेंड विल बी कि डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो होता क्या है कि हमने सोचा था कि फ्लोरीन का जो है ईजी वो ज्यादा रहना चाहिए, है ना. पर क्या है कि फ्लोरीन हैज लेस ईजी देन दैट ऑफ क्लोरीन. इसके लिए उसका रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के कंपेयर में छोटा है, तो देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ओके, साइज इसका छोटा होने के वजह से, इसका साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज कैसा है, बिग है. तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, इनके इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है. तो जब अगर इसका साइज छोटा है तो क्या ये कोई इलेक्ट्रॉन को आने देगा, नहीं आने देगा. तो देयरफॉर इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाती है और क्लोरीन की जो वैल्यू है इट बिकम्स मोर नेगेटिव. तो देयरफॉर ये एक्सेप्शन आया है कि पूरे इसमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा ईजी है, उसके बाद में फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. क्योंकि डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या हो रहा है, ईजी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ईजी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि लेस नेगेटिव होते जाता है. ओके, नेगेटिव के फॉर्म में हम ईजी को गिनते हैं, ये बात आप अच्छे से ख्याल में कर लो. यही सेम ट्रेंड हमने ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी देखा था, और उसका जो सेकेंड मेंबर है ऑक्सीजन का, ओके, उसका ईजी ज्यादा था ऑक्सीजन के कंपेयर में. सेम रीजन था कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑक्सीजन में भी ज्यादा है. क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा था. इट विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू एड इजीली. ओके, तो ये दोनों के लिए सेम रीजंस है. यहाँ पर भी क्लोरीन के लिए भी वही रीजन है कि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के कंपेयर में बड़ा है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है कंपेरेटिवली फ्लोरीन में ज्यादा है. तो देयरफॉर लेस नेगेटिव हो जाता है फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन. ओके, आई होप ये फिर से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गया है. इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, फिजिकल स्टेट. कैसे है फिजिकल स्टेट, इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन कौन से फॉर्म में ऑकर करते हैं, इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ओके, सॉलिड मतलब क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप सॉलिडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे है, गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में है. तो इन जो स्टेट है फिजिकल स्टेट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इनका डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया. वाई, क्योंकि सॉलिडिटी आ रही है. सॉलिडिटी आ रही है मतलब क्या है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो अट्रैक्शन है या फिर जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है ना, स्ट्रांग बनते जा रहे हैं. देयरफॉर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. ओके, फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे ऑकर करते हैं, गैसेस में, ब्रोमीन लिक्विड में और आयोडीन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसके बाद में फ्लोरीन जो है, कलर देखेंगे हम कैसा है इनका कलर. कलर भी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कभी कभी कि फ्लोरीन का कलर है येलो, क्लोरीन का कलर है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड इन कलर एंड आयोडीन, आप सबने देखा भी होगा, आयोडीन इज वायलेट इन कलर. ओके, वायलेट इन कलर, येलो, ग्रीनिश येलो, रेड, वायलेट. ठीक है, याद रख सकते हैं सब लोग. ब्रोमीन इज रेड एंड आयोडीन इज वायलेट. सोलिबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर. ओके, रेडिली रिएक्ट करते हैं ये वाटर से. एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है
ओके, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कंप्लीट सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाते, स्पैरिंगली सोल्यूबल है। पार्शियल सोल्यूबिलिटी जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं स्पैरिंगली, मतलब थोड़ा सा, थोड़े लेवल पे वो डिजोल्व होते हैं। लेकिन ये सोल्यूबल, रेडिली सोल्यूबल किस में है? इट इज सोल्यूबल इन, किस में सोल्यूबल है? इट इज सोल्यूबल इन CHCl3। व्हाट इज CHCl3? क्लोरोफॉर्म। CH2 क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। CCl4 कार्बन टेट्रासल्फाइड। HC हाइड्रोकार्बन, राइट। मतलब ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ब्रोमीन और आयोडीन इजीली या रेडिली डिजोल्व होके क्या बनाते हैं? कलर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं। ओके, तो सोल्यूबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे फॉर्म में ऑकर करते हैं? गैस फॉर्म में, लेकिन जब वाटर के साथ मिल जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl बन जाता है, HF बन जाता है। ओके, करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड्स बना लेते हैं वो लोग, तो मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके वो अपना गैसियस फॉर्म छोड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में ब्रोमीन और आयोडीन, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स। इनके साथ डिजोल्व होने के बाद में, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ डिजोल्व होने के बाद में दे फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को क्या करना है? डिसोसिएट करना है, मतलब क्या करना है? ब्रेक करना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएट या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो, तो इसका सीक्वेंस देखो कैसा है। सबसे ज्यादा ClCl, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये ट्रेंड में वेरिएशन क्यों आया? बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल एटॉमिक साइज कंपेरेटिवली, है ना। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा? देयरफॉर देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक द FF बॉन्ड वीक। FF बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो क्या होगा? एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? तो फिर फ्लोरीन को एनर्जी कम लगेगी। देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन का P सबशेल बनाया है, तो P सबशेल में क्या है? लोन पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों लोन पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन दिस लोन पेयर। इसके लोन पेयर में और इसके लोन पेयर में क्या होने वाला है? रिपल्शन होने वाला है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमने अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड, फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली। तो एनर्जी कैसी लगेगी? कम लगेगी, है ना। तो देयरफॉर ये यहाँ पे पोजीशन में आ गया है। कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन लास्ट में आ गया है। आयोडीन को तो ऑब्वियसली कम ही लगनी थी क्योंकि इसका साइज लार्जर साइज था, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दस इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक FF बॉन्ड कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज दे आर लार्जर इन साइज, सो F2 हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है, इट रिक्वायर्स less amount of energy to break the FF bond compared to chlorine and bromine as they are larger in size. So fluorine has low bond dissociation energy. क्यों है उसका bond dissociation energy low? Because of lone pair repulsion होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को, अगर इस कंपाउंड को हमने थोड़ी भी एनर्जी दी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एक जो आसपास के शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऑलरेडी वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर रिपल्शन रहेगा और उस समय हमने थोड़ी भी एनर्जी दी तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो इसीलिए उसके बॉन्ड डिसोसिएशन की वैल्यू कैसी है? लो है, राइट। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी। ट्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि क्या वेरिएशन है ट्रेंड्स में और क्यों है। विथ रीजन आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर बोल सकते हैं। इसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सबको पता है कि फ्लोरीन कैसा है? इट इज स्मॉल, इट इज हैविंग एनामोलस बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। इसमें एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन तो आई थिंक सबको पता है कि इट इज हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल एंड लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बराबर, ये 4 पॉइंट्स जो है
सारे जितने प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें से हमको कंक्लूड करते हैं आ सकता है अभी कि इट इज हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज, फ्लोरीन इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज हैविंग एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्लोरीन की। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज में क्या क्या आया है देखिए, डिफरेंस या एनोमलस प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं इनके मेंबर्स। फर्स्ट इज आईई मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हाइयर फॉर फ्लोरीन। ठीक है, कंपेयर टू देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स शोन बाय अदर हैलोजन। जो बाकी हैलोजन है उनके कंपेयर में फ्लोरीन का इन सारी प्रॉपर्टीज का किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, ओके, हाइयर है। इसके बाद में फ्लोरीन का आयोनिक रेडाई, कोवैलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया है उसके कंपेयर में उसकी ईजी वैल्यू, आयोनिक रेडाई, कोवैलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लेस है। इसके बाद में दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके, फ्लोरीन के और बाकी जो है एलिमेंट्स उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड में कैसे होता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ में वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो उससे कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में ही कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो वही चीज बोली है यहाँ पर कि दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है फॉर्म ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। ओके, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, स्पेशली फॉर्म करते हैं। और आयोडीन क्या फॉर्म करता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड सच एज IF7। बाकी कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड पे एक पार्ट लेना है हमको इसके बाद में इसका। तो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड बोल सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन का एग्जाम्पल दिया है IF7। ओके।